and welcome to Just a Conversation. She's brilliant, talented, successful, beautiful, intelligent, and above all, she's one of the most humble human beings that we have ever encountered. It is not often that we meet people in life with such an incredible resume who are able to maintain the utmost humility. However, our guest today has spent a 16-year career where she has given countless individuals voices to share their successes. She can talk business, politics, sports, entertainment, and any subject you throw her way. She knows all about it. So let's welcome the stunning, the beautiful, the talented Charul Malik to Just a Conversation. Charul, it is absolute honor to have you on Just a Conversation, and I'm completely blown away by your profile. And you have received so many prestigious awards, including Dadasaheb Phalke Award. Take us, and I'm super excited that we both are from same hometown, Haryana. So, would you like to take us back in your childhood days? You growing up, how was it? Hey Anjali, thank you so very much. And Somi, thank you so very much for this lovely platform. You guys look fab always. And yes, are from same hometown, Haryana, same state. And let me take you, towards Chandigarh. So I can call it my hometown as well because I have a twin sister named Parul. So we were born and brought up over there only. And, Chandigarh is known as City Beautiful. So everything, about Chandigarh is beautiful. So if I try to recollect, all my memories, all memories are very fond. And we had a beautiful childhood and we never, had that craving to gel with so many people because we were a family together, me and my sister. Like you will understand when you have a twin sister, तो वो एक फीलिंग बहुत अलग होती है, फ्रेंड्स बनाने की जरूरत नहीं होती है. We were pretty much together and under one roof, studied together, played together, and हम बड़े हुए साथ साथ. So it was a beautiful journey. And मेरे पापा हरियाणा से हैं, मम्मी भी हरियाणा से हैं. Mom is from a Brahmin family, Papa is from a Jat family. So it's like a mix of all the cultures. It's like global India. So my me, I'm from Punjabi family and my husband is from Jat, so I can resonate. That's super. And my husband is from Gujarat. He's from Maharashtra. So it's like a Guju, blend of Gujarat, a blend of Chandigarh, blend of Haryana. And my sister is married to a South Indian. So, it's like a global India. Yes. A global India across the world, you can say, because my sister also settled in New Jersey, US. Oh, wow. So it's like too much happening. So you must catch up when you come to US. yes, surely. मैं next time आऊंगी, मैं पक्का मिलूंगी. पहला कॉल मेरा मेरी सिस्टर को और मेरी दूसरी सिस्टर को जो कि सोमी है उनको जाएगा. Yes, and तीसरी sister Anjali now. Okay. Perfect. अच्छा, पहली बात तो चारुल, हम लोग इतने privileged और honored हैं कि आप हमारे शो में आए, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमें पता है आप कितनी successful और आपकी resume इतनी amazing है, मगर आप हमें ये बताइए कि आपको पहला आपका as a reporter, आपको पहला वो job कैसे मिला, कहाँ मिला, कौन से TV में थे या print में थे, सब बताइए हमें. Wow, let me just compliment you. आपकी हिंदी सुपर. अरे मम्मी ने मार के उर्दू पढ़ना लिखना सिखाई है बचपन में. कह रही है अमेरिका में हो चाहे कहीं भी हो, उर्दू मार के उन्होंने मुझे सिखाई है. उर्दू भी मार के सिखाई तो एक्चुअली है ना. उर्दू भी इंग्लिश में सिखाई है. So okay, how I started and मेरा पहला जॉब कैसे मुझे मिला. मैं बहुत छोटी थी, I was 7-8 years old. तब से मुझे बहुत शौक था कैमरा के सामने बोलने का. So उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, बट मैं एक टीवी का फ्रेम मैंने खुद बनाया था. क्राफ्ट का पूरा एक कोई नया टेलीविजन आया था, उसको मैंने कट करके उसको फ्रेम बनाया, उसको काटा बीच से और मैं बैठ गई उसके अंदर. So I used to present myself as a presenter, as a host.
and read news. So I was like एक flower लगा के सलमा सुल्तान को कॉपी में करती थी. I was very young, like 7 years old. तो मैं लगा के ऐसे करके पूरा उनको, आइए देखते हैं आज के समाचार. तो आप देख रहे हैं मौसम का हाल, तो आपने देखा ये, बड़ा सटल तरीके से मैं वो करती थी. So मेरी फैमिली मुझे देखती थी, मेरी सिस्टर मुझे देखती थी, and she was like, what is she doing? This is so boring. But I never used to find it boring क्योंकि मेरा वो पैशन था. तो ये ऐसे करते करते मम्मी पापा ने देखा कि मेरे अंदर कुछ तो अलग है बाकी बच्चों से. तो उन्होंने मुझे पुश किया. फिर मेरा कैमरा फ्लाइट निकला. फिर मैं स्टेज पर, मैं अपने स्कूल में हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी. एंड दैट रियली हेल्प मी आउट. पहला जॉब मुझे सिटी चैनल चंडीगढ़ में मिला, जो कि एक लोकल टीवी चैनल था. और वहां पर मैंने सीधे एट द एज ऑफ आई गेस 14 and a half 15 आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ न्यूज एंकर. सो इट वाज माय फर्स्ट जॉब. एंड उसके बाद मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर एक चाइल्ड होस्ट के तौर पर काम किया. और उसके looking back, अभी आगे मैंने I've worked with all top news channels of India, and I'm still working with India TV as executive editor and anchor. So ये मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई और बहुत मजेदार रही क्योंकि सोमी एंड अंजलि वो कहते हैं ना कि आपकी हॉबी अगर आपके काम में कल्मिनेट हो जाती है, nothing. Of course, you are the luckiest person in this world. So तुमने इतने सारे like almost all celebs का interview किया चारू. So it will be unfair if I'll ask you to name one. So can you name us few जिन्होंने आपको deeply inspire किया है या जिन्हें आप look up करती हैं? Many of them, but I will love to take Deepika Padukone's name क्योंकि उन्होंने इंस्पायर किया मुझे, या मैं ये बोलूंगी कि उनकी वजह से मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया. और ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा. It was a very normal interview for me, and my boss asked me one fine day, he called, he said, Charul, can you do skating? Do you know how to skate? I said, मेरी डिक्शनरी में no word नहीं है. So I just happened to tell him yes. He said, okay, sure, okay, fine. All set, be prepared for tomorrow. I thought that since Deepika Padukone was coming up with a film called Lafange Parinde, where she played role of a skating instructor. Right. And there's a lot of propaganda, and you can say a lot of publicity about her being trained as a proper, skating instructor who has gone through a rigorous regime, rigorous, practice of skating and all that. So I thought she will be doing it. I will be just symbolically supporting her, just wearing it for heck of it and just sitting next to her and doing her. So we started running all big teasers, from the since morning कि हम ये करने वाले हैं. पहली बार देखिए टीवी के इतिहास में इंटरव्यू जो स्केट्स पर होगा, लेकिन उसमें हमने स्पेसिफाई किया था कि वो स्केटिंग करेगा कौन. मैं अपना जनरल न्यूज़ पढ़ रही थी. आई वाज लाइक शी विल डू, ऑफ कोर्स शी इज अ स्टार. मैं तो कर लूंगी थोड़ा बहुत. उसके बाद दीपिका हो गए, नील नितिन आए, उसके बाद उनके को स्टार थे लफंगे परिंदे फिल्म में. उन्होंने जब ये पता किया उनकी टीम ने कि हम लाइव हैं, उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने मतलब of course दीपिका को बोला होगा कि नहीं करना है लाइव, और मैं नहीं करूंगी, why would you do this? Then my boss looked at me like this, what next? अब हम टीजर रन कर रहे हैं सुबह से, तो अब तो आपको करना पड़ेगा. I was like okay, and I did it for an hour. It was a live interview and it was a 5-cam show. 5 camera, you guys understand, because you guys are facing camera today. 5 cam, and you're getting commands from the PCR panel control room that you have to move, you have to ask Neil, you have to face camera 1, cut to camera 2, cut to long shot, cut individual camera. So a lot of commands were there in my ear, and I was simultaneously on my skates and I was interviewing both of them. So it happened, and fortunately मैं गिरी नहीं, तो मेरा नाम लिम्का में आया. एंड मैं आज भी दीपिका को बोलती हूँ, मैं उनसे मिलती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि दीपिका ये आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि ना आप करते, ना मुझे ये मौका दिया जाता, और ना मैं उसमें सक्सेस मुझे मिल पाता. So that's how I really get inspired from her. That's all I can say. बाकी बहुत और एक्टर्स हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं सबके साथ, but this was a very special one. Many congratulations to you, Charul. तो आपने कभी स्केट का प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लिया, and that was the first time you? Unbelievable. Wow. Unbelievable. You are so talented girl. I'm so proud of you. Thank you very much.
अच्छा ये बताइए, so as a woman, you know, achieving success in our career, it's very challenging, not just in Pakistan, India, South Asia overall, but also in America, in all over the world as women, right? Yes, there's drastic progress, but we're not there yet. We're still fighting for equal pay. So tell us some of the challenges that you faced in your career getting to this position now. Okay. So me to be very plain as such कोई बहुत ज्यादा challenges मैंने face नहीं किए. By the grace of God, maybe हमारा potential देखा गया और so me as you say ना, when you are live तो उसमें men women का वो एक जो पैमाना होता है ना वो नहीं होता है, because when we are live we are proving ourselves, Right. you know. Right. So it's like a live test that is going on where we are right or we are wrong. So by the grace of God मैं luckily मैं बहुत live रही हूँ अपने time में पूरा, you know, आज तक. So it's like every day is a testing day for me, and every day I'm passing that board examination sort of a thing. So मैंने वो challenge से as such कभी ऐसा नहीं देखा कि कुछ मुझे बहुत face करना पड़ा हो. But yeah, you're right to some extent. जो लोग हैं men को ज्यादा आगे रखा जाता है ये बोलकर कि अरे ये rough and tough हैं, अरे ये कर लेंगे, बहुत ही यू नो हार्डशिप होती है, बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें लड़कियां नहीं कर पाती हैं. बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है. मीडिया में आपने भी कोर्स किया है सोमी, आप भी बेहतर जानती हैं मुझसे कि अगर लड़कियां उल्टा ज्यादा अच्छा कर रही हैं तो मुझे लगता है हमने कंपटीशन मेन को दिया हुआ है. तो ये क्वेश्चन ये नेक्स्ट टाइम आप उनसे करना. डेफिनेटली करूंगी मैं. मगर यहाँ पे भी मैं देखती हूँ इस मुल्क में भी CNN पे आदमी चाहे हैंडसम हो या ना हो, मगर रिपोर्टर्स, फीमेल रिपोर्टर्स हैव टू बी वेरी गुड लुकिंग, एंड आई फाइंड दैट वेरी हिपोक्रिटिकल. आई नोटिस दिस ऑन अमेरिकन टीवी के जितनी भी न्यूज रिपोर्टर्स हैं, they're like models, मगर आदमी जो है they don't have to be good looking. So again we have a long way to go, I think. Correct. I completely agree. So चारुल, आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू करती हैं और जर्नलिज्म में हैं, सो आप वर्ल्ड की और इंडिया की स्पेशली करंट सिचुएशन से वेरी वेल अवेयर हैं. सो इफ यू, अगर आपको मौका दिया जाए कुछ 5 चीजें बदलने का, तो वुड यू चेंज दोस थिंग्स, और क्या होंगी वो 5 चीजें अगर आपको कुछ बदलना हो तो? अंजलि, पहली चीज होगी कोरोना को भगा देना. यस, भगाओ. वी आर सो डन. दूर भगाना, फेंक के उस जगह से जहां से आए हैं, और जिस जगह से वो आए हैं वहां से भी फेंक के और दूर. सो आई डोंट वांट टू से कहां से आए, द एंटायर वर्ल्ड नोज वो कहां से आया कोरोना वायरस. तो मैं जो चेंज है वो यही करना चाहूंगी कि कोरोना को मैं बिल्कुल खत्म करना चाहूंगी हमारे वर्ल्ड से, बिकॉज वी गाइस हैव सीन इनफ इन 2020. इट्स लाइक अ पेन. You know, we are facing these days. Amen to that. Amen to that. Yeah. जल्दी से भगाओ कोरोना को. तो मेरा बस है तो आज कोरोना को ब्लेम कर दो. दूसरी बात मुझे जो लगती है, जिसके लिए नो मोर टीयर्स जो आपका फाउंडेशन है वो काम कर रहा है, जिसके लिए सोमी बहुत एक्टिव है, तो मैं चाहूंगी दूसरी चीज ये कि ऐसा फाउंडेशन हमें रन करने की जरूरत ही नहीं पड़े. कि जिसमें हमें रेस्क्यू करना पड़ रहा है किसी के लिए, हमें हेल्प करनी पड़ रही है, अब्यूज हो रहा है, किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये जो पूरा एक सिनेरियो है ना, मैं इसको खत्म करना चाहूंगी कि हम और चीजें भी कर पाए. जैसे सोमी आज कर रही है दुनिया के लिए, कब से कर रही है, 19 years, more than that. She's like dedicated her life, you know, for such people towards a social cause. तो मैं ये चाहूंगी कि इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए. Right. बिल्कुल सिचुएशन ही नहीं हो कि जिसके लिए हमें रेस्क्यू करना पड़े या आकर उनकी हेल्प करनी पड़े. लोग इतने अच्छे से रहे कि एवरीबडी हैज अ राइट टू लिव, यू नो, हैप्पीली. सो दूसरा बदलाव मैं ये करना चाहूंगी. और तीसरा, पॉवर्टी इरेडिकेट हो, खत्म होनी चाहिए. एलीट क्लास, ये मिडिल क्लास, ये यू नो whatever class. So it's like it should be one class, you know. We should be, everyone should be at all par. should be treated equally. Yeah. Exactly. We don't want no casteism, no financial discrimination, no skin color discrimination. We want no discrimination at all.
करेक्ट करेक्ट ये मेरी प्रार्थना है कि हम लोग ये जो अनटचेबल और कास्ट सिस्टम और ये दलित और ये सब और रेप कल्चर जो पूरी दुनिया में होता है और बच्चों को अब्यूज किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारा मेरी ये दुआ है कि ये सब खत्म हो जाए। बस ये आपने इतनी अच्छी बात कही है, इतनी अच्छी बात कही है। सच में सोमी, मैंने तो बात कही है, आप इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, आप तो लगातार कर रही हैं लोगों के लिए, सो इट्स रियली इंस्पिरेशनल एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम यू। एंड जो मैं चाहूंगी, मैं वो ये चाहूंगी कि मेन विमेन इनको एक तरह से रखा जाए, एक तरह से मापा जाए, मापा भी, मेजर भी नहीं, इट्स अ रॉन्ग वर्ड। ऑल ऑफ अस आर पार्ट, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, तो इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये मेन बड़े पावरफुल है, विमेन उनसे कम है, मैं इस चीज को खत्म करना चाहूंगी अगर मेरे हाथ में आए। वी शुड नॉट बी जज्ड, नो वन, बी मैन और विमेन। सो आई थिंक फॉर मी, मेन वहीं पर है, विमेन भी वहीं पर है। पर कुछ लोग बोलते हैं मेन यहाँ है, विमेन यहाँ है, तो वो नहीं होना चाहिए। Yeah, that needs to be changed in our society. Everybody needs to be treated equally. We want no discrimination. Really like it, Charul. You are such an inspiration. आपने इतनी अच्छी बातें कही हैं, and इन 4 चीजों में ही you have covered so much. You have covered almost all. And the best part is that ये इतनी down to earth, इतनी humble लड़की है, मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि आपसे मिलके, और छोटी बहन इतनी जल्दी बना लिया मैंने आपको, इसलिए क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं। Yeah. तो मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। अच्छा, ये बताइए कि हम सब भाग दौड़ करते रहते हैं, हमारा स्केड्यूल इतना बिजी होता है, तो आप अनवाइंड कैसे करती हैं? आप रिलैक्स करने के लिए क्या आप करती हैं? मूवीज देखती हैं, मेडिटेशन करती हैं, क्या करती हैं? मैं सच बताऊं आपको, मैं अनवाइंड करने के लिए क्या करती हूँ, मैं काम करती हूँ, बिकॉज ये मेरी हॉबी है। क्या करती हैं? काम करती हूँ, जो मैं कर रही हूँ अभी वो मेरी हॉबी है। तो मुझे ना सीरियसली मुझे 1% भी नहीं लगता कि मैं काम कर रही हूँ, बिकॉज मैं ये ही मेरे लिए एक मोटिवेशन की चीज है। और जिस दिन मैं काम नहीं करती ना, जिस दिन मेरे मेकअप नहीं होता या मेरे हेयर नहीं होते, उस दिन मुझे लगता है क्या कर रही हूँ मैं। Carol, I can completely resonate with you because I'm an IT professional by professional, and I'm by passion or hobby. I'm so fortunate that I'm designer, jewelry and clothing designer. As soon as I wind up my office work and I switch back to my designer job, because that's not work for me, that's fun. So I can completely resonate. बहुत कम लोग होते हैं जो इतने fortunate होते हैं जिन्हें वो करने को मिलता है जिसे वो enjoy करते हैं. So definitely we both are very lucky, and including Somi, she's also lucky. She's doing what she's born for. I love it. पता है बहुत ड्रेनिंग काम है ये। अंजलि तुम्हें तो पता है, चारुल तुम्हें भी पता है, ये इतना ड्रेनिंग है कि सुबह से रात तक आप हॉरर मूवीज देख रहे हैं बच्चों के साथ और सबके साथ, मगर इसमें जो आपको ग्रेटिफिकेशन मिलता है इनकी जिंदगी बचा के, तो ये काम तो लगता ही नहीं है। ये तो काम लगता ही नहीं है। ये मतलब मेरे लिए, स्पेशली एज अ सर्वाइवर, मेरे लिए तो ये बेस्ट थेरेपी है कि मैं दूसरे बच्चे और औरत और आदमी की मदद करूं जो उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिससे मैं गुजर चुकी हूँ। So proud of you, Somi. और आप तो इतना अच्छा काम कर रही है, एंड यू आर मल्टीटास्कर। आप बॉलीवुड में फिल्म्स कर चुकी हैं, ग्लैमर से जुड़ी रही हैं, उसके बाद आप यूएस आई, वहां पर बिल्कुल आप आप उस दुनिया को छोड़कर आपने कुछ नया किया, और वो नया ऐसा कि लोगों की लाइफ चेंज कर रहा है। सो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर सेटिस्फैक्शन का कोई और काम हो सकता है, जिसमें changing so many lives, you are rescuing people, you are just letting them breathe. It's like a bliss. Thank you so much. चारुल, आपने बताया कि आपकी एक विश है कि अगर आपको मौका मिले तो आप सबसे पहले कोविड को खत्म करेंगी। सो जब कोविड की बात निकली है, तो do you think it has affected your personal or professional life in some ways? Yes, it has affected a lot. क्योंकि मेरा एक शो है जो 365 डे शो है, सास बहू और सस्पेंस, जिसे हम प्रोड्यूस करते हैं। इट्स अ 1 hour शो, 5 साल से रन हो रहा था, 5 years. So you can understand where I'm coming from. आप रोज एक चीज कर रहे हो, फिर अगले दिन की प्लानिंग कर रहे हो, तो वो शो हमारा होल्ड है अभी। वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू शो। तो कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से सेट्स बंद हुए, शूटिंग बंद हुई, एक्टर्स अपने अपने घर चले गए, वापस सब रीस्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे।
बट इस चीज ने, कोरोना वायरस ने हमारे शो को कहीं ना कहीं हैम्पर किया कि हमारा शो होल्ड हुआ. I am hoping my best, fingers crossed, 2021 we will be back with a bang. But जो बीच में जो स्पैन है ना 4-5 महीने का, इट वाज रियली वेरी इरिटेटिंग, क्योंकि हमें घर से काम करना है और हम लोग घर पे कभी, मतलब हम टिकते नहीं. मैं अभी बैठी हूँ ना, सो आई एम लाइक आई एम सिटिंग, व्हाट आई एम डूइंग, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट. सो इतने महीनों तक बैठना फॉर अ पर्सन जो बैठ नहीं सकता एक जगह, यू कैन अंडरस्टैंड. तो ये हुआ. देन काम का फ्लो थोड़ा कम हुआ. फिर वो जो अब मैं जैसे हम जूम पे बात कर रहे हैं, अभी हम इंटरेक्शन हमारा हो रहा है बिकॉज यू गाइस आर इन यूएस, दैट्स गुड, बिकॉज ये हमारा सोर्स है कनेक्ट होने का. बट इंडिया में रहकर अपने पड़ोसी से भी हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, हम अपने ऐसे ही बात कर रहे हैं. And it was like something very unusual that we were not expecting. So ऐसी छोटी छोटी बहुत बातें हुई हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि इस पूरे टाइम से, इस पूरे पैच से, फेज से हमने बहुत कुछ सीखा भी है. We have started valuing good people. We have started valuing, a lot of things that earlier we were, taking things for granted. So in a way it's good, but yeah, बुरा भी बहुत कुछ हुआ है. हाँ हाँ, बस ये जल्दी से खत्म हो जाए कसम से. अच्छा ये बताइए कि हम लोग मैं और मेरे छोटे भाई जब पाकिस्तान में थे तो हम लोग बचपन से ही हिंदी फिल्में देखते थे. मम्मी के फेवरेट अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जीनत अमान, परवीन बॉबी, वो तो मतलब बहुत फेवरेट थे और हम तो उनको देखते हुए बड़े हुए हैं. तो आप बताइए कि आपके बचपन में आप कौन सी आपकी फेवरेट मूवीज थी ग्रोइंग अप? मेरी फेवरेट मूवीज में सच बताऊं सुमी, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन मुझे आपकी फिल्म में आपके कॉस्ट्यूम्स आज भी याद है. वाह 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 वाह, क्या बात Carol Hoops. Hoops, hoops. आपके लुक्स, आपके फ्रिंजेस, आपका मोल, आपका हेयर कलर, आपके that high neck t-shirts that I used to wear with full sleeves यहाँ तक वाली. Yes. आपकी that आंख वाली एकदम ऐसे वाली आर्च, आईब्रोज एकदम शार्प वाली एकदम. So I remember each and everything. आपको उतना याद नहीं होगा जितना मुझे याद है. वाह, ये तो कमाल हो गया. अच्छा तो कोई तो फेवरेट बताइए, कौन है एक्ट पुराने जमाने में कोई फेवरेट एक्ट्रेस? मेरी तो रेखा, जीनत अमान और परवीन बॉबी, हमेशा से जब मैं छोटी थी, बचपन से. I used to like Rekha. Still I like her because she is very grateful. Oh, I love her. Love her. Wow, she's like amazing. And film आपने पूछा तो मुझे नागिन फिल्म याद है, विश्री देवी की. Oh my God, my favorite. Anjali की favorite. I still cannot believe, Charul. सोनी, हम जब छोटे थे तो हम हमारे घर में कोई आता था तो नागिन बन के डांस करते थे. पहले तो ऐसे हैरान होकर देखते थे कि ये बच्चों को क्या हुआ है. उसके बाद उनको शायद आदत पड़ गई, बोलते चलो बेटे नागिन का डांस करके दिखाओ. तो मैं ऐसे करके पूरा डांस. पता है हमें यकीन नहीं आता, अभी तक मुझे यकीन नहीं आता है कि शी इज गॉन. मुझे अभी तक यकीन नहीं आता है, खुद भी बिलीव नहीं कर पाती. इतना रोई है बेचारी, इतना रोई है. मगर मैं जब चिंटू जी की डेथ हुई तो मैं तो रो रो के पागल हो गई. बिकॉज हम लोग तो कर्ज मूवी कितनी दफा हमने देखी थी बचपन में. इट वाज सो सैड. जल्दी से ये साल खत्म हो यार, जल्दी से ये साल. This year has been crazy. श्रीदेवी की बात की तो मैं तो और इसलिए नहीं भूल पाती because I was doing the live coverage when she died. I was live throughout, like 24/7. I was live that This day. must have been hard, Charul. बहुत hard रहा होगा आपके लिए. Like a person like me who is always smiling and doing live on a diva's death, a person who is, like जो सबके दिलों में बसती थी, तो वो live करना ना, I was like trying to control, and since I had to deliver, I had to speak, right facts about her journey and everything. So it was very tough for me. I was like, I can't even tell you, I can't even express you what I had I gone can totally through at that imagine, time. Charul, how traumatizing that would have been. Because मुझे आज दिन तक विश्वास नहीं होता she's not with us anymore. I cannot sink in that fact. She was my,
I'm like die hard fan. Still अभी तक उनका काम हमारे साथ है. That's the amazing thing. Being in film industry, कितने सारे superstars को हम लोगों ने खो दिया है साल. इरफान खान, ऋषि कपूर, long list, सुशांत सिंह, कितना उसके ऊपर तो कितना ज्यादा मीडिया ट्रायल भी हुआ. तो controversy भी हुआ है, बहुत बज में रहे हैं, न्यूज में बहुत हुआ है, काफी कुछ, मतलब शुरू कहाँ से हुआ मैटर, उसके बाद ड्रग्स कहाँ पर से आकर कहाँ पहुंच गया. एंड फिर इट्स लाइक कुछ भी हुआ नहीं उसमें, ऐसा कुछ कंक्लूजन नहीं निकला जिससे नहीं निकला. तो But on a lighter note, चारुल आपने पुराने अपने बताए, अभी जो यंग जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनमें से आपको कौन पसंद है? उनमें से कौन पसंद है? सो मैं सच बताऊं, आजकल ना मुझे सारे एक्टर सेम लगते हैं. सच में, मतलब मैं अभी आपने एकदम पूछा है ना, तो मैं ऐसे आंख बंद करके सोच रही हूँ, मुझे कोई भी ऐसे स्पेसिफिक नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, बिकॉज एवरीबडी लुक्स द सेम. आप लोग लड़कों की बात करो, एक्ट्रेस की बात करो, सब सेम क्यों लगते हैं आजकल. जैसे मैं आपकी बात कर रही हूँ, रेखा तो बहुत पहले जमाने की है. आपका एक अपना एक आपका ऑरा है जिसमें आपका एक लुक है. ये सोमी का फ्रेम है, ये सोमी इसमें फिट हो रही है. ये रेखा का फ्रेम है, ये जीनत अमान का फ्रेम है. बट आजकल की जो एक्ट्रेस है ना, वो बहुत सिमिलर है. आई होप आई एम साउंडिंग sense. I don't know what I'm saying, but No, I know what you're saying. I know exactly what you're saying. और आजकल की फिल्में मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब डैडी मम्मी होते हैं तो आज पहले तो बचपन में जो हम वो देख लेते थे, 2 फूल आ रहे हैं ऐसे, तो खुल्लम खुल्ला मैं कितनी दफा जाके बाथरूम जाऊं और कितनी दफा पानी लेके पानी पीने के बहाने में जाऊं, तो पूरी फिल्म ही निकल जाती है ऐसे. तो आजकल की फिल्में बिल्कुल अलग हो गई हैं. पहले जमाने की फिल्मों में सब्सटेंस था, जैसे काका जी की फिल्म आनंद, या जैसे अर्थ फिल्म थी शबाना जी की. तो ये सारी फिल्मों में मेरे ख्याल में बहुत सब्सटेंस था. नई फिल्में जो है वो मुझे लगता है फैमिली के साथ देखने में मुश्किलात होती हैं. इनमें बहुत मुश्किलात होती हैं. मगर ये है कि अभी आप फिल्म की बात कर रहे हो कि सीन आया है तो ग्लास का मैं पानी लेने जाऊं या मैं वॉशरूम जाकर आऊं. अभी तो वेब सीरीज चल रही है, आप पानी वेब सीरीज तो आओगे तो सब वही दिखेगा आपको. It's not that you cannot watch in front of your kids. The content is bizarre, like it's completely A-rated. हाँ, मगर रानी मुखर्जी, I was a big fan of her acting. Rani is such a good actress, very good actress. तो चारों फिल्म इंडस्ट्री की बात निकली है, तो क्या ऐसे कुछ वर्क एथिक्स हैं जो आपको लगता है कि जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था और तब से लेके अब तक कुछ चेंजेस आए हैं, या कुछ ऐसे वर्क एथिक्स में चेंजेस हैं जो आप देखना चाहेंगे मूविंग फॉरवर्ड इन दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? Okay, I'll talk about news also, entertainment also. News चेंजेस ऐसे आए हैं कि अभी ब्रेकिंग न्यूज बहुत होती है. अभी टेलीप्रॉम्प्टर का जमाना खत्म हो गया. That TP thing is like, right? So now people have to be more alert. अभी लोग बहुत अलर्ट हैं, बहुत क्विक हैं, बहुत स्मार्ट हैं. कुछ लोग ऐसे जो होमवर्क करते हैं, सोमी अपना, जैसे आपने मेरा इंटरव्यू किया है तो ऑफ कोर्स आप होमवर्क के साथ आए हैं, ऐसे आके बैठ गए. बट आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दे आर स्मार्ट. वो होमवर्क भी नहीं करते, बट दे नो हाउ टू मैनिपुलेट. दे आर लाइक स्पीकिंग, भले ही उनको अंदर से नहीं पता उनको करना क्या है, but they look smart. They just are trying to manage it. Right. So I think ये difference मैंने देखा है, जो जब मैं मेन स्ट्रीम कर रही थी आज से कुछ साल पहले, अभी ज्यादा भी टाइम नहीं हुआ है, अब मैं एंटरटेनमेंट कर रही हूँ, शेयर एंटरटेनमेंट नाउ. बट उस टाइम पे मैं बहुत होमवर्क करती थी, और मुझे अब ऐसा लगता है, मैं जब एंकर्स को देखती हूँ, they're like, what are you doing? Why are you writing? Why are you making chits? इतना पढ़ लिए होते तो कहाँ पहुंचे होते. तो मुझे एक दो ने कमेंट भी मारा था जब मैं लिख रही थी, तैयारी कर रही थी. I was like, if I'm preparing, it's good ना. So they were like, पढ़ा chits बना रही है ये तो इंटरव्यू करने से पहले. तो I was like, yeah, I love to write. So we were like, we don't care, हम तो ऐसे लाइव चले जाते हैं. So मुझे ये चीज अभी देखने को मिल रही है, जो इन अ वे अच्छी भी है बट बुरी भी है. क्योंकि हम तैयारी, जिसे प्रेपरेशन बोलते हैं, होमवर्क बोलते हैं, उसके बिना ही चले जाते हैं, नोइंग दिस हैंडल कर लेंगे. सी हैंडल करना डिफरेंट है और
सेंसिबली बात करना और उसको पूरा एग्जीक्यूट करना वो एक अलग बात है. There's a fine line, right? right, ये चीज़ absolutely. मैंने देखी है जो ओवर द इयर्स चेंज हुई है. एंड फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पर तो बहुत क्विक क्विक चीजें हो रही हैं. फिल्म जैसे एक साल में एक बनती है. आजकल टीवी शोज रोज शूट होते हैं. I So know. it's taxing also for the actors and for the media, but it's good for viewers. They're getting new content each day, but it's little boring also कि आप एक ही चीज को स्ट्रेच कर रहे हो. जैसे एक सीरियल में शादी चल रही है तो चलती जा रही है. आज एक फेरा हुआ है, कल दूसरा फेरा हुआ है, फिर चौथा फेरा हुआ है. 7 फेरे 7 दिन में हुए. उसमें भी लोग क्या क्या सासू माँ ये Yeah. All right, so Charles, I have a very important question for you. Nowadays, we are all judged based off of how many followers we have on our Instagram or social media or whatever. I find that very disturbing personally, because I would, I have maybe 3,000-4,000 on my personal Somi Ali account. No More Tears has about 8,000. Magar मैं ऑर्गेनिकली इसको ग्रो करना चाहती हूँ. मैं नकली तरीके से और खरीद के और ये सब नहीं करना चाहती हूँ. मगर मुझे ये बहुत बॉदर करता है कि यार उसके कितने फॉलोअर्स हैं, वो इतनी मशहूर है जितने उसके फॉलोअर्स हैं. आपका क्या ओपिनियन है इस बात में? स्वामी आपने बिल्कुल ठीक कहा. ये बहुत गलत तरीका है जज करने का कि अगर आपके इंस्टा पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो ही आप एक बड़ा नाम है, या आपके पास ब्लू टिक है, ऑथेंटिक आपका ये अकाउंट है तो ही आप एक सेलिब्रिटी हैं. तो ये बहुत गलत सोच है. और ये कैसे स्प्रेड हुई है मेरी समझ से बाहर है. हम बहुत शोज करते हैं. हमारे शो में हम ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली टूरिज्म बोर्ड्स के साथ ऑल अक्रॉस द ग्लोब. सो जब वो टूरिज्म बोर्ड हमें पिच करते हैं एक्टर्स के लिए, तो मैं जब नाम अपने एंड से देती हूँ तो वो लिटरली बोलते हैं नहीं 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 इनके तो फॉलोअर्स नहीं है. तो मैं उनको बताती हूँ कि नहीं, इन्होंने इतने अच्छे शोज किए हैं, इनके शोज सालों चले हैं. सो आई हैव टू really work hard explaining them that they are big names, people know them, but they are no नए लोग भी चलेंगे. We want 1 million plus Insta following. So it's like, why? This question is there in my mind also. But I think ये out of proportion इस पूरे मैटर को ब्लो किया गया है. And people who are जिसे बोलते हैं ना, प्लान करते हैं कि अपने आप को प्रमोट करना है. तो ये आज की है जो आज के सो कॉल्ड मैं एक्टर्स नहीं बोलूंगी, सब तरह के लोग हैं जो अपने आप को प्रमोट करके लेवल पर ला रहे हैं ताकि उन्हें एड्स मिले, एंडोर्समेंट्स मिले. और उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि ये इतने मिलियन होंगे तो ही हम कमाई कर पाएंगे. सो ये जो लोग पैसा कमा रहे हैं ना इंस्टाग्राम से, सोमी, ये उनकी वजह से हुआ है. अच्छा ये रीजन है इसके पीछे. अगर सोमी को कोई एड में लेना चाहता है तो वो ये क्राइटेरिया उसके लिए होगा ये देखना कि सोमी के फॉलोअर्स कितने हैं. अगर मैं नहीं हूँ और मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो दे विल टेक मी इन देयर एड विदाउट थिंकिंग दैट हीज अ बिगर नेम ऑन मी. सो ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक स्ट्रेटजी है फॉर दोज जो इनसिक्योर है. मैं ये सिंपल जो इनसिक्योर है, जिनको ये लगता है हम एक उस कंपटीशन में हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो हम क्या करें, हम एक्टिंग से तो मार नहीं सकते उनको, हमारे अंदर कोई ऐसे स्पेशल स्किल तो नहीं है, तो एक काम करते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाते हैं. फॉलोअर्स बढ़ाएंगे तो हम नजर में आएंगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, चीजें मिलेंगी करने को, तो हम छा जाएंगे. तो ऐसे करते करते देयर प्ले नंबर ऑफ पीपल ऑल बीट्स, be it acting, sports or whatever. So they are being highlighted because of the followers. It is wrong. I don't connect to this at all. Excellent answer. क्योंकि ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि अरे सोमी अली के तो सिर्फ 3,000 फॉलोअर्स हैं. अरे मगर सोमी अली 24 घंटे गधों की तरह जो है लगी हुई है नो मोर टीयर्स के लिए, तो वो आप लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, मगर आप देख रहे हो कि सोमी अली के फॉलोअर्स कितने कम हैं. ये बहुत अजीब सी बात है. वेरी सैड, वेरी सैड. और बात मैं ऐड करना चाहूंगी, लोगों को ना वो ग्लैमर क्वेश्चन के पीछे लोग पागल हो जाते हैं. आज की डेट में भी ना पीपल आर लाइक अभी आप एक्टिंग करती रहती ना, अभी पिछले जो 19 इयर्स आपने जो लीप आया एक तरह से जो आपने चेंज ओवर किया, अगर आप बॉलीवुड में तो आपके 10 मिलियन होते. लोगों को ग्लैमर क्वेश्चन के पीछे भागना है.
या मैं जब इस की बात बात से है, मुझे बहुत कि दुख लोग की बात है। कर रहे हैं ना तो आज की डेट में, वो इंसानियत के लिए हो रहा है, ग्लैमर तो पीछे रह जाता है। राइट। पहले आप इंसानियत के लिए काम करना है, तो ये लोगों का दिमाग अभी मुझे लगता है वो नहीं आया है उस लेवल पर, जो हम बात कर रहे हैं शायद वो ये समझ भी नहीं पाएंगे। I feel really sad, चारुल, अगर कोई फिल्म एक्ट्रेस और से कोई सुपर मॉडल, lot of supermodels, they will post something, that post will have million and million of likes and comment, and then somebody is posting say good quote or something related to social work, that post would barely have 15, 20 or maybe 100 likes. That's बहुत pity. दुख की बात है ये, ये बहुत। रीजन है बिकॉज you guys don't have a PR, you are not getting it promoted, they Right. are getting promoted and penetrated. Right. You know, it's a booster. All the posts they are posting, everything, whatever they are doing, it's being boosted. हाँ, तो But वो you guys पैसे are not दे के getting कर it. रहे हैं ना, पैसे दे के कर रहे हैं। हाँ, अब पीआर कहाँ से पैसे कमाएगा? वो पीआर का जो बीट है वो ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, अच्छा, समझ ये गई, है कहानी। Yeah. समझ That's very good information, Charul. Really like to know, like, it's nothing to be sad about. It's not that organic. PR is doing their job. So good to know. Yeah. तो चारुल, last but not least, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं और फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस के इंटरव्यू करती ही रहती हैं, तो डू यू हैव एनी प्लान्स टू मूव फॉर फिल्म प्रोडक्शन, डायरेक्शन और मे बी एक्टिंग? हु नोज? No, I don't think so because see to be very plain, मुझे ऐसा कोई ऑफर नहीं है। हाँ, मुझे सीरियल्स के ऑफर काफी आए हैं, बट मैं अभी तक न्यूज कर रही थी और मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। आई वाज लाइक कल शो में मुझे क्या करना है, मेरा दिमाग वहां रहता था। और मैं कहीं पे भी जाती हूँ किसी चैनल में तो मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है और वो कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि मैं कहीं और काम नहीं कर सकती, मैं सिर्फ यहाँ काम कर सकती हूँ फॉर अ स्पैन ऑफ 3 years और व्हाटएवर द कॉन्ट्रैक्ट सेज। सो एक आप बाउंड हो जाते हो, आप लिमिटेड हो जाते हो। सो बट यस, एज यू सेड, आई माइट स्विच, आई डोंट नो व्हेन, बट एक्टिंग भी करके देखनी चाहिए। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर कुछ अच्छा ऑफर आता है तो डेफिनेटली मैं सोचूं। इतनी खूबसूरत है तो एक्टिंग तो करनी Why जरूरी है। not? अच्छा अच्छा, एक और चीज तो मैं भूल ही गई कि आप तो जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, मतलब आप बिना हम दोनों से सवाल किए बगैर नहीं जा सकती। अब आप हमसे एक एक सवाल पूछिए अपने मन का। ओके ठीक है, तो पहले मैं अंजलि से पूछती हूँ। पूछिए। अंजलि, आप बहुत अच्छा शो होस्ट कर रही हो, आप फैशन से भी जुड़ी हुई हो, आप बता रही थी मुझे। तो अगर ये दोनों चीजें आप नहीं करो, इसके अलावा कोई तीसरी चीज मैं कहूँ आपसे करने को, तो वो आप क्या करेंगी? ओ, ये तो आपने मुझसे इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया ना चारुल, क्योंकि आपने शो की बिगनिंग में बोला बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम बिजनेस एनालिस्ट, सो आई हैव डन माय मास्टर्स इन फिलोसफी एंड मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। तो मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो बिल्कुल अलग है। तो इसके अलावा मैं वो कर रही हूँ जो मेरा पैशन है, डिजाइन एंड आई लाइक सोशल सर्विसेज। तो मैं नो मोटिवेट की पार्ट ऑफ फैमिली भी हूँ। तो इसके अलावा मुझे कुछ करना हो तो आई लव मेकअप। मेकअप लर्न करके उस जॉनरा में थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज मुझे लगता है जो आर्टिस्ट होता है ना, उसके अंदर सब कुछ क्रिएटिविटी होती है। तो डेफिनेटली समथिंग क्रिएटिव, मेकअप एंड पेंटिंग, आई वुड लव टू एक्सप्लोर दैट जॉनरा। क्विकली अंजलि, अभी सोमी ने बहुत प्यारा मेकअप किया है, आई थिंक वो जरूरत नहीं है मेकअप की, मैंने भी मेकअप किया है, ऑफ कोर्स मैंने किया, आई विल टेल द वर्ल्ड। तो आपको क्या कुछ ऐसा जो आप हमें बताना चाहेंगी कि ये कम करो तो अच्छा लगेगा, सोमी और मेरे लिए? तो आई स्टार्ट विद सोमी बिकॉज वो मुझे पहले ही दिख रही है। तो सोमी कुड हैव ब्राइटन हर लिप्स लिटिल बिट बिकॉज शी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल ग्लोई स्किन। तो थोड़े ब्राइट लिप्स वुड हैव बीन परफेक्ट। और ये भी अच्छा है, हो सकता है कि ये ब्राइट है और लाइट में उतना ब्राइट नहीं दिख रहा। So coming back to you, Charul, you are glowing. You have so soft and doll-like features. तो तुम्हें एक तो मेकअप की उतनी जरूरत भी नहीं है और तुम इतनी प्रिटी लग रही हो। If you would have worn little bit bigger earrings, that would have, you know, added. Yeah, see, I can वो see it बाल now. से छुप गए थे, बाल से Yeah, छुप गए थे। बालों में छुप गए थे। और तुम्हारी ड्रेस पे कुछ danglers होते तो it would have jazzed up your look little bit more. You're looking perfect. No need to change anything, but danglers would have added more charm. तो
I borrow Somi's loops and hoops, whatever she has in her wardrobe. I'm trying to switch Somi's look from hoops to another earrings. Somi, I'm waiting. Catch the ये तो बचपन से मेरा सिग्नेचर है. I know. मैं सोमी को हमेशा बोलती हूँ, let's break this thing, let's break your style, let's do something else. So धीरे धीरे I'm switching her. अभी आपको इसके बहुत सारे pictures दिखेंगे जहाँ पे she is not wearing hoops. So I'm switching her on a different looks. I'm excited. पर ऐसे ये बहुत सूट करते हैं उन्हें और ये ऐसा बहुत लगता है सूट करते हैं. बने ही इनके लिए. या बने ही उसके लिए और सूट भी करते हैं, बट मुझे लगता है और इतने सारे शेप्स हैं जो इसके फेस पे सूट कर सकता है. शी नीड टू ट्राई मोर लुक्स. Thank you. Yeah, Thank you. I always you can experiment. And Yes. yes, अब मेरा सवाल है सोमी से. सोमी, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं मैं कहूंगी, क्योंकि आपके पास वो डिग्री है जो आप को कभी भी आप आ सकती हैं फील्ड में और आप ऑलरेडी एक्टिव रही हैं इसमें भी. तो आज के जो जर्नलिस्ट को आप देखती हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो कोई ऐसा जिसे देखकर आपको गुस्सा आता है कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं, आपकी आवाज खराब हो गई. कोई ऐसा क्या? कोई ऐसा एंकर या ऐसा कोई रिपोर्टर अक्रॉस द ग्लोब किसी भी चैनल का जिसे देखकर आपको ऐसा लगता है कि व्हाट आर यू डूइंग? जर्नलिस्ट वो TMZ जो करते हैं ना, TMZ, आई डोंट नो इफ इंडिया में लोग देखते हैं TMZ. वो जो टैबलॉइड जर्नलिज्म जो करते हैं ना, उन पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो जर्नलिज्म जो हमारा ये जो फील्ड है जिसमें मेरी डिग्री है, पहली में बैचलर्स डिग्री साइकोलॉजी में, सेकंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में, तो ये जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का निकोलस क्रिस्टोफ इज हाईलाइटिंग चाइल्ड मैरिजेस और कितने अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये उन जर्नलिस्ट को जो है उनकी डिग्निटी, मतलब उस कैटेगरी में डाल के उनकी डिग्निटी निकाल देते हैं. तो उससे मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये इतना पत्रकार होना इतना इम्पोर्टेंट काम है और लोग अपनी लाइफ रिस्क करके जाते हैं अफगानिस्तान, इराक और इंडिया और कहाँ मुल्कों में, गाँव में जहाँ पे टेररिज्म होता है, पाकिस्तान, अलग अलग जगहों पे. ये इतना इम्पोर्टेंट काम है, आप आवाज उठा रहे हो इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पे, तो फिर उसके बाद ये जो टैबलॉइड जर्नलिज्म है, इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है. करेक्ट करेक्ट. वैसे आपने मुझे अलाउ किया एक एक सवाल करना, लेकिन एक और सवाल है सुमी मेरा आपको. बोले मेंटेन कैसे है, खाती क्या है, कौन सी चक्की का आटा खाती है, आटा खाती है या नहीं खाती है? अच्छा, मैंने इंडिया टीवी में ये आपने मुझे पूछा था, मैंने आपको कहा था अच्छा नो कार्ब्स, प्रोटीन, एक्सरसाइज, और उसके बाद क्या करती हूँ मैं, हाँ धूप में नहीं जाती, और हमेशा एवरीडे में सनब्लॉक और मॉइस्चराइजर और फाउंडेशन जान के पहनती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ये फाउंडेशन इतना मेकअप है, मगर मैं जान के पहनती हूँ क्योंकि ये कवर आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. और दूसरी बात ये है कि मम्मी इराकी हैं और डैडी इंडियन, मैं कहती हूँ इंडियन है, हम सब इंडियन है, पाकिस्तान तो था ही नहीं पहले, तो डैडी इंडियन है, तो डैडी की स्किन बहुत डार्क है और मम्मी की स्किन बहुत वाइट है, तो मैं जो हूँ कॉम्बिनेशन बनी हूँ, तो वो जो डैडी की तरफ से डार्क स्किन मिली है ना, तो वो उससे थोड़ा एज वेल होता है इंसान डार्क स्किन से. हाँ, ये सीक्रेट है. क्या बात है. So thank you so much चारुल for asking wonderful questions और इतना मजा आया आपसे बात करके. It was absolute fun filled conversation. Thank you so much for joining Just a Conversation. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तहे दिल से करना चाहेंगे सोमी, तहे दिल से आपका शुक्रिया. आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए. जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो करते रहिए एंड कीप इंस्पायरिंग.